are off to our first safari in Ranthambore. To Ranthambore, I am S.P. Joshi, naturalist in this park. So we are waiting for the tiger. En route safari day 1, and that's the view that welcomes you. Aravalli up close and personal, as they say. I'm having a pretty bumpy ride, but I enjoy sitting at the back end. These are remnants of the Ranthambore fort. Welcome to Ranthambore. I am S.P. Joshi, naturalist in this park. This is Mr. Mahavir. We are being India's most popular tiger reserve. It speed 1,734 square kilometers in the area and divided in 10 sectors. We got zone number 6. Total number of tigers are over 75 in Ranthambore. Park has divided in 10 sectors. Randomly, we got zone number 6, which has 3 tigers, 2 are female and 1 is male. Let's enjoy safari with S.P. Joshi. Wish you all the best. Okay, that's the boundary wall of the Ranthambore fort. Ranthambore fort has the 7 gates outside, 7 gates inside the fort. Okay, so this is an outside fort, right? Yes. Outside wall. Boundary wall. Which called the check post. Okay. Good morning, day 4 of our jungle trip. So it's 6:15 in the morning. We are heading towards the morning safari. We have been allocated zone 4. Actually, we had been allocated zone 2. That's as per what we knew yesterday. But today morning we got to know that we are actually going to zone 4. So it seems to be a good news because most of the spotting has happened at zone 4. Morning sunrise in the jungle. It's absolutely quiet and serene. Not able to take much video because it's very cold and chilly, and the jeep ride is very bumpy. And right now the target is to spot a tiger.
morning. Today is our vacation day 3. Today is 8th March, also International Women's Day, and Holi and holiday. So 3 days into one. So we are still at Ranthambore, and today we are going to visit the Ranthambore fort. That's about it. They're not even bothered. We were taking pictures, there were flashes, the sound of camera. People were even chatting, calling them, but they seemed unaffected or indifferent. So our guard was saying that there could be 2 reasons. One is they got used to the crowd, and they got used to these vehicles, and the second and the most important reason is, I think over the time they have started trusting human. So they have started believing the fact that okay, these people are just going to come and watch us from a distance, and they will not harm us. So I think that's probably the reason which led to this behavior. It is basically in the middle of a jungle. So we are entering a gate. What does it say? No noise inside. We are entering jungle premises. This is a jungle premises. This is the entry road to the fort. We are here at 11 o'clock, and here it says Ranthambore National Park. We are now entering Ranthambore National Park, as the signboard says, and the bumpy road starts. Just look at this road. On both sides you have trees, and behind those trees you have the rocks and the residual part of the hill, Aravalli hill. सावधान, सड़क पर 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी होने पर सड़क पार नहीं करे। अभी पानी नहीं है तो सड़क पार करे। See the water moves. You want to take a bath? Fresh water here. And get all sorts of skin rashes. Yes, why not? Whatever you do, don't open your windows, okay? Look at this There road. might be tigers here. Tigers do come here, okay? I think going by our luck to spot a tiger, See the we will waterfall. never be able to see a tiger, See the at least waterfall. in this condition. See the waterfalls. Okay. It's a dam actually. It's a dam. Some erstwhile dam. गाइड का काम करूंगा। तो सर ये रणथंबोर का पहला नंबर का गेट है, इसको बोलते हैं नौलक्का पोल, और इसको सेफ्टी पोल भी बोलते हैं सर। सेफ्टी पोल से सामने गेट के सामने बाहर ये दीवार बनवा दी। क्या करते थे दुश्मन हाथी और मोटे तने से गेटों को तोड़े जाते थे। Okay. तो इसके रणथंबोर के चारों दिशा में 4 गेट बने हुए हैं। पहला नंबर का है नौलक्का पोल, दूसरा दिल्ली गेट है, तीसरा सतपोल गेट है, चौथा सूरजपोल गेट है। तो और ये रणथंबोर का चौहानों का है सर, चौहान ठाकुरों का है, सूर्यवंशी। ये चौहान डायमंड सील लगा हुआ है सर, ये सामने ये दीवार पे फूल लगा हुआ है ना। रणथंबोर फोर्ट 5वीं सदी में बना हुआ है। Okay. ये महाराजा जयतर सिंह चौहान थे रणथंबोर फोर्ट, उन्होंने बनवाया इसको रणथंबोर फोर्ट को, और इसमें 450 वर्ष लगे बढ़ने में सर। अच्छा। इस रणथंबोर में 1500 परिवार रहते थे। राजा के साथ में सेनापति सब उनके थे जयंत, महाराजा जयंत।
उनके पुत्र हुए हमीर देव। तो लास्ट राजा हमीर देव थे यहाँ के, हमीर देव चौहान थे। तो महाराजा हमीर से पहले क्या दिल्ली का बादशाह था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने राजा हमीर से 3 साल तक युद्ध लड़ा रणथंभौर में आके, और वो हमीर देव चौहान से वो जीत नहीं पाया था शक्ति और बल से। तो रणथंभौर में हमीर देव चौहान का पहला धर्म था शरणागत को शरण देना। तो महाराजा हमीर ने रणथंभौर में मोहम्मद शाह को शरण दे दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा कि मेरे दुश्मन को रणथंभौर में शरण मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ से पैगाम लिख के भेजा कि मेरे को मेरा गद्दार वापसी लौटा दीजिए। पर हमीर देव ने वापस उसको लौटाने में स्वीकार नहीं करा, क्योंकि इनका पहला धर्म था शरणागत को शरण देना। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर दिल्ली से रणथंभौर में आ गया था युद्ध लड़ने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पे 6 साल तो वो बाहर पड़ा रहा इंट्री। हमीर देव के 3 सेनापति थे, रतिपाल, रणमल, भोजराज। ये 3 सोल्जर अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच और धमकी देके उनके अंडर में ले लिया था। महाराजा अमीर को ये पता नहीं था कि अपने सेनापति उससे भी मिले हुए हैं। तो इनका अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेके और रणथंभौर में आ गया फिर युद्ध लड़ने के लिए। बाहर से जंगल से अंदर घुस गया था, क्योंकि 3 सोल्जर मिले ना उनको, उन्होंने इस रणथंभौर के पूरे रास्ते वगैरह उसको बता दिए थे। तो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर आ गया था। 6 साल युद्ध लड़ा हमीर देव चौहान से रण पहाड़ पे। तो लास्ट युद्ध था उनका 1301 में। तो महाराजा हमीर लास्ट में अपनी रानी अपनी प्रजा को बोल के जाते हैं, यानी अपनी विजय प्राप्त हो जाए रणथंभौर में तो बढ़िया फूलों की बरसात बरसाना, और यानी अपनी हार हो जाए तो यहाँ की रानियाँ प्रजा सब अग्नि झोर के लेना। महाराजा अमीर ऐसे बोल के और रण पहाड़ी पे पहुंच जाते युद्ध में। तो हमीर देव उस युद्ध में जीत के वापस रणथंभौर में आने वाले थे। तो राजा के पहले 3 सोल्जर जो अलाउद्दीन खिलजी से मिले, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा कि रणथंभौर में जाके मेरा झंडा लहरा दो। 3 सोल्जरों ने आके रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी का झंडा लहरा दिया, मुस्लिम झंडा काला कलर का, कि अपना राजा हार चुका रणथंभौर में, अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर रहा। तो यहाँ की रानियों ने राजन के पहले ही प्रजा से 1301 औरतों ने गलत झंडा पे अग्नि जोर कर लिया था, गलत झंडा पे, कि अपना राजा हार गया रणथंभौर में, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा। तो एक उनकी बेटी राजकुमारी थी पद्मिनी, उन्होंने जल जोहर कर लिया था, क्योंकि हिंदू धर्म में कंवारी लड़की अग्नि जोहर नहीं कर पाती है। बंद मिला गणेश पोल गेट। वहाँ राजा ने भगवान शिव जी से फिर प्रार्थना करी कि भगवान आज मेरे लिए मेरे किले के द्वार बंद और मेरी रानियाँ मेरी प्रजा सब कष्ट में है, तो मेरे को कोई सी शक्ति दो कम से उनको मैं बचा पाऊँ। तो भगवान शिव जी ने उनके घोड़े को पवन का रूप दिया था उड़ने का, घोड़े का नाम था बादल। तो राजा ने सीधा पहाड़ी पे होकर रणथंभौर में घोड़ा चढ़ा दिया। हो गई थी, राजा को कुछ नहीं मिल पाया, रणथंभौर पूरा खाली मिला। तो राजा ने सोचा लास्ट में अब इस दुनिया में किसके लिए युद्ध लड़ूंगा, कहीं जंगल में जाके भगवान की तपस्या कर लूँगा। तो महाराजा अमीर 3रा नंबर सतपोल गेट से नीचे जा रहे थे। वहाँ पे जाके भगवान शिव जी के चरणों में बोला उन्होंने, राजा ने, कि भगवान आपके लिए मेरे घर में कुछ नहीं बचा, न तो कोई जल बचा है, न कोई फूल है, आज तो खुद मेरा सिर बचा हुआ। तो राजन ने खुद का सिर काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्वीकार कर दिया। शंकर निभाए, और जैसे सिंह होता है उसकी लायक में एक बारी गमन करता है ऐसा। तो ऐसे हमीर हटते, वो हमीर हटने ऐसे बोल के 12 सिर काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्वीकार कर दिया था फिर से। हाँ, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया सर इस रणथंभौर पे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया सर। ओके। राजा के बाद में 1301 के बाद में रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 2 दरगाह बनवाई है, कुछ सोल्जरों की कब्रें बनवाई है। फिर वो यहाँ से चित्तौड़गढ़ निकल गया था। चित्तौड़गढ़ राजा रतन सिंह थे, वहाँ पे पहुँच गया था सर। फिर यहाँ पे बाबर आ गया था, महाराणा राणा सांगा आ गया था यहाँ पे। राणा सांगा के बाद में बाबर आ गया, बाबर के बाद में अकबर के अंडर में आया सर। अकबर के फिर अकबर ने इसको जयपुर दरबार थे सवाई माधो सिंह, उनको दे दिया था गिफ्ट में, क्योंकि आपस में वो रिश्तेदार थे। जयपुर दरबार और अकबर